ایک اللہ والے کے حج اور سید جادی کی 4 دن کے بھوک کی ہے یہ عجیب و غریب واقعہ۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں، ایک بار میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ دل میں جوش تھا، جنون تھا، ولولہ تھا، عجیب سی کیفیت تھی۔ سفر ہمارا جاری تھا۔ جب ہم بغداد کے شہر کوفہ پہنچے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سفر کا کچھ سامان اور خرید لیا جائے۔ تو کوفہ کے بازاروں میں ہم گھوم رہے تھے۔ اس وقت میں اکیلا تھا۔ میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ بازار سے میں اس ویران جگہ پر کیسے پہنچا۔ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا اس ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور پوشیدہ پھٹے ہوئے تھے، یعنی حلیے سے فقیرنی لگ رہی تھی۔ وہ چاقو لیے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ اب مجھے پہلی فرصت میں یہ خیال آیا کہ یہ مردار کا گوشت لے جا رہی ہے اور ہرگز ایسا نہیں کرے گی، خود کھائے گی، بلکہ یہ لوگوں کو پکا کر کھلا سکتی ہے پیسوں کے لیے۔ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حرام گوشت بیچتے ہیں۔ سو یہ خیال آنے پر میں چپکے چپکے اس کے پیچھے ہو لیا، وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت آگے آگے چلتی رہی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے بے آواز چلتا رہا۔ اچانک وہ عورت بہت بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی بہت اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں مجھے نظر آئی جن کے چہرے سے غربت، افراجی اور بھوک جھلک رہی تھی۔ مصیبت کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ میں وہ منظر دیکھ کر یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، وہ عورت کون ہے اور ان 4 لڑکیوں کا اس سے کیا واسطہ ہے۔ وہ عورت اندر گئی اور تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ دروازہ وہ بند کر چکی تھی، لیکن میرے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ ایک تو انسان تجسس کا مارا ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ مردار کا گوشت لائی تھی اور وہ مردار گوشت نہ جانے ان 4 بچیوں کو کیوں کھلانا چاہتی تھی، مانا کہ وہ بھوکی تھی۔ لیکن یہی سوچ کر میں دروازے کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے جھانکنے لگا۔ مجھے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر کا گھر بالکل برباد تھا، خالی تھا۔ اس عورت نے لڑکیوں سے روتے ہوئے کہا، بیٹی، اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں ناسمجھی کی حالت میں گوشت کو اٹھا کر دھونے لگی اور پھر کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھونا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ اس گوشت کو کھاتی، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی مددگار، نہ کوئی ساتھی، تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ میں نے کہا، آتش پرستوں یعنی مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا ایک مردہ کو کھانا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ اسلام میں تو یہ بات بالکل ہی حرام ہے، لیکن اور بھی مذہب اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں یہ بات جانتی ہوں اور میں جس مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میں یہ بات اچھی طرح بخوبی سمجھتی بھی ہوں کہ مردار گوشت کھانا حرام ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا مجھے بخوبی علم ہے کہ مردار کا گوشت کھانا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو اللہ کی بندی پھر کیوں کھا رہی ہے اور اپنے بچیوں کو بھی کھلا رہی ہے؟ بتا،
ऐसा क्यों करती है तू؟ उसने कहा, ये बात सुनकर हैरान रह जाओगे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ये बात बतानी ही पड़ेगी। हम खानदाने नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था, बहुत ही सीधा और बहुत ही अच्छा इंसान। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, पर नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो हिस्सा उसने छोड़ा वो खत्म हो गया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, उसने सिवाय इस घर के हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। पर जब पैसा खत्म हो गई तो ये बच्चियां भूख से बिलबिलाने लगी। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन अगर इंसान फाके में हो और भूख से मर रहा हो तो क्या इस बात के लिए उसको रब इजाजत नहीं देता? हमारा 4 दिन का फाका है, 4 दिन से हम भूखे हैं और नौबत ये आ रही थी कि मेरी बच्चियां बिलख बिलख कर रो रही थी। करीब था कि ये अपनी जान दे देती और एक माँ से बर्दाश्त ना हुआ। इसी वजह से मैं बाहर गई। मुझे वो खच्चर पड़ा हुआ नजर आया और मैंने मुनासिब यही समझा, अल्लाह का नाम लेकर मैंने उसका गोश्त काटा और अपनी बेटियों से कहा कि इसको पका लो। तभी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसके हालत सुनकर और ये जानकर कि वो सैयद जादी है और इस हाल में है, मैं बेचैन हो गया। मेरा दिल तड़प गया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना इस हाल में और कोई भी बाज परोस करने वाला नहीं, कोई भी उनकी खबर लेने वाला नहीं। मैं अपने साथियों के पास पलट कर आया। मैंने कहा, मैं बहुत गमजदा हूँ। उन्होंने कहा, वजह क्या है? मैं कहने लगा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सबने कहा, ये क्या गजब कर रहे हो? हज के लिए तुम्हें अल्लाह ताला अपने दर पर बुला रहा है और ये सादत तो खुश नसीबों को हासिल होती है, और तुम साफ साफ मना कर रहे हो कि मैं हज पर नहीं जाना चाहता। सब ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा, तुम लोग चले जाओ। अब मैं अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया, और उसके अलावा मेरे पास 600 दिरहम थे और उनमें से 100 दिरहम का आटा खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपा कर उस बुढ़िया सैयद जादी के घर पहुंचा और वो सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह ताला अल्लाह अजवजल तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए और तुझे इल्म हो जाए कि जो नेकी तूने इस दुनिया में की है वो नेकी जाया नहीं गई। रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज का काफिला रवाना हुआ। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा में ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जाहिर सी बात है, जिस सफर के लिए शौक से जा रहा था उसके लिए तड़प क्यों ना आती। लेकिन जहां देखा एक गरीब घराना और वो भी सदाद का, तो मैंने उस हज को कुर्बान किया। पर उस बुढ़िया सैयद जादी ने जो दुआ दी उस पर मेरा दिल ठहर गया। जब हज का वो काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने महरूमी पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से, दुख से मेरे आंसू निकल आए। एक टीस दिल में उठी, उफ, कि उस दर पर मैं नहीं जा सका। जब मैं उनसे मिला तो कहा कि तू मेरे साथी हो, मेरे लिए दुआ करना। वो काफिला चला गया और मैं उनके इंतजार में वहीं रुका रहा। दिल मेरा तड़प रहा था, एक दर्द की लहर उठ रही थी। दर्द की अथाह गहराइयों में मैं गिरता चला जा रहा था और मेरे दिल से यही सदा निकल रही थी, जा रहा है काफिला तैबा नगर रोता हुआ, मैं रह जाता हूँ तन्हा। ये हबीबे किरदिगार जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज गुंबद दो दिखा। हाजरी की आरजू ने फिर कर दिया बेकरार। काफिला चला गया और मैं वहीं ठहरा रह गया। इंतजार करने लगा कि हज का वो काफिला कब आएगा और आज मीने हज कब आकर मुझे खुशखबरी सुनाएंगे कि हमारा हज हो गया है और हज मकबूल हम करके आए हैं। पर एक तरफ
ये खुशी भी थी कि मैंने किसी की मदद की, और वो कोई भी आम लोग नहीं थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के फूल थे। उनके घर के वो ऐसे फूल थे कि जो बेआसरा थे, जो ख्वातीन थी, और उनके सर पर छत तो थी पर खाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे खुशी थी कि मैं उनके किसी काम आया। फिर ऐसा हुआ कि हाजी सारे लौट आए। मैं उनसे मिला। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे इखराजात का बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है? क्या तू हमारे साथ अरफात के मैदान में नहीं था? तूने हमारे साथ रमी जमेरात नहीं की? तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए? तू हमारे साथ साना बसाना चल रहा था, कदम ब कदम चल रहा था। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह अज़्वजल का लुत्फ है कि मुझे ये लोग हर जगह देख रहे थे। उतने देर में मेरे शहर के हाजी व काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मस्कूर फरमाए जो तुमने दौड़ लगाई, हज के दौरान जो तुम चले। तुम्हारे हर कदम को अल्लाह ताला कबूल करे, तुम्हारा हज मकबूल हो जाए। वो भी कहने लगे, अरे अजीब बात है, तूने मुझे रुखसत किया, पर हम सोचने लगे कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था। तूने हमें भेज दिया और हमारे पीछे पीछे चला आया। मेरे भाई, तू हमारे साथ अराफात पे नहीं था, रमी जमेरात पे नहीं था, यानी जब कंकरियां हम शैतानों को मार रहे थे, उस वक्त तू हमारे साथ नहीं था। तूने हमारे साथ हज किया है, तू हमारे साथ हर जगह था। अब इनकार कर रहा है तो समझ नहीं आता, आखिर तुझे ये कैसा मजाक सूझ रहा है? मुझे हैरत हो रही थी कि पहले वाला तो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन ये तो मेरे दोस्त हैं और इनको भी मैं नजर आया। मैं हैरत में डूबा हुआ वहीं खड़ा हुआ था और कोई जवाब नहीं था मेरे पास। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में थे या नहीं, मदीना में थे या नहीं, जब हम कब्र अतहर के जियारत करके बाहर को आ रहे थे? उस वक्त हुजूम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी। वो तुम ही थे, जिंदा सही सलामत इंसान तुम ही थे। ये देखो, इस पर मोहर लिखी हुई है। जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह अब भी हैरत के शिकार, दिल में मसरूर भी हो रहे थे कि ये लोग क्या खुशखबरी मुझे सुना रहे हैं, लेकिन ये थैली तो मेरे पास पहले कभी नहीं देखी। वो बार बार कह रहा था, लो भाई अपनी अमानत लो, ये वहाँ पर मुझे दी गई थी और तुमने ही दी थी कि ये भाई ये अमानत रख लो। जब हज से वापसी होगी तो कूफा पहुंचकर तुम मुझे ये दे देना। उसके बाद वो थैली अपने पास रख ली। जिसको पहले कभी नहीं देखा था उसको लेकर वो कहते हैं, मैं अपना घर पहुंचा, ईसा की नमाज पढ़ी, अपना वजाइफा पूरा किया। इस सोच में जागता रहा, आखिर ये क्या अजीब किस्सा है। इसी कसमकस में आंख लग गई तो मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए खूबसूरत हसीन मुस्कुराहट के साथ ये फरमाया, ए रबी रहमतुल्लाह अलैह, आखिर हम कितने दफ़ा इस पे कायम करें कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं है। चल तुझे यकीन नहीं आता तो बात ये है कि जब तूने उस सैयद जादी पर जो मेरी औलाद थी खर्च किया, अपना हज का इरादा तूने मुलतवी किया, तो अल्लाह रब्बे करीम ने उसका बदला तुझे अता फरमाया। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को तेरी सूरत बनाकर हुक्म दिया कि वो कयामत तक हर साल तेरी तरफ से
हज बैतुल्लाह किया करे, और दुनिया में तुझे एवज दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 दिनार यानी अशरफियाँ अता की। रब्बी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं सोकर उठा तो उस थैली को खोल कर देखा तो उसमें 600 अशरफियाँ मौजूद थी। दोबारा मैं उठा और वजू किया और सजदे में गिर गया। सबसे बड़ी खुशी थी, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके प्यारे से चेहरे को देखा, जलवा अफरोज हुए। मेरी जिंदगी तो वैसे ही संवर गई। वो अशरफियाँ मुझे ना भी मिलती तो मैं समझता मुझे दुनिया में सारी दौलत मिल गई, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए हैं। पर अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी करम नवाजी, उसका लुत्फ़ो करम की मैंने अपने खर्च को मैंने जाया किया अपने तौर पर वो जाया ना हुआ। 1 साल तो क्या, वो फरिश्ता अब मेरे लिए हर साल हज करेगा। सुभान अल्लाह।